Hello dear kids, how are you? I hope you are fine. This is your EVS teacher Miss Renugri from SBS Children Academy. And students, this is your third video related to chapter 17, the earth, air and water. एयर, अर्थ, एयर, वाटर से रिलेटेड ये आपका थर्ड वीडियो है जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे. ओके, लेट अस सी वर्ड एंड देयर मीनिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज बिफोर राइटिंग वर्ड मीनिंग्स you have to maintain the first page of the lesson, the earth, air and water. तो आपको उसमें या तो अर्थ ड्रॉ करना है, ओके, ऐसा कुछ ड्रॉ करना है जो आपके लेसन को सूट करता हो. And after that you have to write the word meanings and your first word is peak. P-E-A-K, peak. What do you mean by peak? That means top, यानी कि जो सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पे होता है, that is called top. Now the second is precious. Precious. Precious means valuable. Precious means valuable. Now the third one is melts. Third one is melts. That means turn into liquid form. Anything which is, ऐसा कोई भी चीज जो मेल्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, पानी जैसा हो जाए, turn into liquid. Liquid form. Okay. Now the next is sources. Sources यानी कि form. Fourth one is sources. Sources means form. Fifth one is dirty. Dirty means unclean. Dirty, that means unclean. गंदा जो होता है उसको हम डर्टी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ब्रीथ. B-R-E-A-T-H-E, ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स रेस्पायर. R-E-S-P-I-R-E, रेस्पायर. एंड द सेवेंथ वन इज प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, ये वो वाला प्रॉपर्टी नहीं है जो जायदाद वाला होता है. ये प्रॉपर्टी है characteristics. Characteristic. Okay. Now the last one is huge. Huge यानी कि जो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है. That means very big. Okay. Let us revise this. Peak, top, precious, valuable, melts, turn into liquid, sources, form, dirty, unclean, breathe, respire, property, characteristics, huge, very big. Let us see question answers. Yes students, let us discuss, answer the following questions. And our first question is, write any two properties of air. जब मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स. प्लीज डू इट. राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. यानी कि हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. किसके बताने हैं? हवा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. सो आंसर आपको लिखना है इस तरह से. टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर, टू प्रॉपर्टीज of
air are, yes students, tell me the properties. आपको तो पता है ना, हमने चैप्टर पढ़ाया है. yes, जो प्योर एयर होता है स्टूडेंट, जो एयर होता है उसका कोई कलर नहीं होता है. सो एयर हैज नो कलर, एयर हैज नो कलर. एंड क्या वो स्मेल करता है? हवा नहीं करता ना. सो एयर हैज नो स्मेल. Okay, next question is question number 2. What is the main source of water? Main source of water. हमने बताया था सबसे जो मेन सोर्स हम होता है पानी का, वो कहाँ से मिलता है हमें? हमें मिलता है बारिश से. So rain is the main source of water. Write the answer. Rain is the main source of water. Yes. Now let us see question number 3. Write 3 things we do on earth. You have to write the 3 things that we do on earth. Write 3 things that we do on earth. Yes, वो कौन से 3 चीजें हैं जो हम अर्थ पर करते हैं? पहले तो आप ये लिख लीजिए, the three things that we do on earth are फर्स्ट वन. बताइए वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हम अर्थ पर, धरती पर करते हैं? यस, पहले तो हम धरती पर क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं, अपना आसरा बनाते हैं ना. यस. एंड द सेकेंड इज वी ग्रो क्रॉप्स ऑन अर्थ. हम अनाज भी तो उगाते हैं धरती पर. यस. एंड द नेक्स्ट वन इज वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये भी तो हम धरती पर ही करते हैं. सो ये 3 चीजें हम धरती पर करते हैं. सो वी बिल्ड हाउसेस ऑन अर्थ. सेकेंड इज वी ग्रो क्रॉप्स ऑन अर्थ. एंड द लास्ट वन इज वी ट्रैवल from one place to another. Yes, these are the 3 points. Next question is, why do we need air? Why do we need air? हमें हवा की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत है हवा की? यस, वी नीड एयर टू ब्रीथ. हम सांस ले पाए इसलिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है और हमेशा पड़ेगी. सो वी नीड एयर टू breathe. That's why we need air. Now the last question is question number 5. I'm going to write here, students.
Question number 5 is, what is the total amount of water, of fresh water present on earth? Yes. अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कितना फ्रेश वाटर हमारी धरती पर है. यस, आंसर इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज 0.5%. ऐसा है कि फ्रेश वाटर है. ओके, सो द टोटल अमाउंट of fresh water present on earth is 0.5%, यानी कि 1% का आधा. ओके, 1% का आधा हमारे पास पानी है जो कि फ्रेश है, पीने लायक है. यानी कि हमारे पास बहुत कम पानी है जो कि फ्रेश वाटर, जो पीने लायक है. ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग्स as well as these question answers you have to write in your EVS notebook. And if you have any doubt regarding these two things, please drop a message. Thank you. Have a nice day. Till then, bye bye.